انسانوں کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ مذہب کو بوڑھوں کی ایکٹیویٹی سمجھ لیا گیا۔ اس کی وجہ اتنی ہے کہ مذہب کو سمجھا ہی غلط گیا ہے۔ مذہب سکھ ہے، ابدی سکھ، ہر دم سکون۔ اب سکون کون نہیں چاہتا؟ کیا سکون صرف بوڑھوں کی تلاش ہے؟ مذہب نام ہے اس حقیقت کو جان لینے کا کہ ہم اس فزیکل جسم سے ماورا بھی کچھ ہیں، اس ادراک کا کہ ہم اس سوچتے دماغ اور خیال کی لہروں سے اوپر بھی کچھ ہیں۔ مذہب نام ہے اس علم کا کہ فارمز کی یہ دنیا حتمی دنیا نہیں ہے، بس حواس کی رچائی ایک رام لیلا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ یہ یونیورس بس ایک مالیکیولر ڈانس ہے۔ ٹھیک مذہبی آدمی وہ ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے چاہے غم ہوں یا چاہے خوشیاں، دونوں ہی اور کچھ نہیں، بس دماغ کی سجائی ایک بازی ہے۔ اس ڈھنگ سے جو مذہبی ہے، جو یہ حقیقت جانتا ہے، اس کے اندر کے سکون کو پھر نہ غم ہلا سکتا ہے، نہ خوشیاں اس کے اندر آندھی کے جھکڑ بنتی ہیں۔ خوشی اور غم سے اوپر اٹھ جانے کا نام ہے سکون، پیس، حقیقی سکھ۔ یہ تو ہے مذہبی آدمی کی زندگی جس کا رخ ہے اس کی اپنی طرف۔ دوسری زندگی وہ ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہے، دوسرے کی طرف۔ مذہب میں دوسرا شرک ہے، اسی لیے توحید مذاہب کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ مذہب کی یہ ڈیفینیشن سامنے رکھیں اور پھر دنیا کا ایک جائزہ لیں۔ اس وقت دنیا کی ایک کثیر آبادی ہے جو خود کو کسی نہ کسی مذہب کا ماننے والا کہتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی آدمی واقعی اس دنیا میں موجود ہوتے تو یقین مانیے آپ کو جنت کے لیے مرنے کا انتظار ہی نہ کرنا پڑتا۔ مسجد، مندر، گرجے، گردوارے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن کیا یہ لوگ پرسکون ہیں، سکھی ہیں؟ وہ سکھ، وہ سکون جو مذہب کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، کیا یہ اس نتیجے کو جی رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک سنار جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کمہار گدھے پر بیٹھا جا رہا ہے اور گدھے کے گلے میں ایک ہیرا لٹک رہا ہے۔ اس نے کمہار کو روکا اور کہا، یہ پتھر بیچو گے؟ اس نے کہا، بیچوں گا۔ سنار نے پوچھا، کتنے لوگے؟ اس نے کہا، 8 آنے لوں گا۔ سنار نے سوچا اسے شک نہ پڑے تو اس نے کہا، میں تو اس کے 4 آنے دوں گا۔ کمہار نے کہا، 6 آنے، بس آخری قیمت، لینا ہے تو لے لو۔ سنار نے کہا، میں تو 4 آنے ہی دوں گا۔ وہ اصل میں کمہار کو پکا کرنا چاہتا تھا اس سودے پر، اور یہی سوچ کر وہ آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنار پھر لوٹ آیا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ ہیرا گدھے کے گلے میں نہیں تھا۔ اس نے کمہار سے پوچھا تو کمہار نے کہا، پورے 1 روپے میں بیچ دیا ہے۔ سنار کو دکھ تو بہت ہوا۔ اس نے کمہار سے کہا، تو پورا گدھا ہے، وہ ہیرا تھا، ہیرا، لاکھوں روپے اس کی قیمت تھی۔ کمہار نے کہا، حضور اگر میں گدھا نہ ہوتا تو لاکھوں کا ہیرا گدھے کے گلے میں کیوں لٹکائے پھرتا؟ لیکن آپ اپنے لیے کیا کہیں گے؟ آپ تو جانتے تھے وہ ہیرا ہے، وہ لاکھوں کا ہے، آپ کیوں پتھر کی قیمت پر بھی لینے پر تیار نہ ہوئے؟ اب اس مثال کو ذہن میں رکھو اور سمجھو، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مذہب کو جانتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، وہ سنارے کی طرح ہے۔ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو نادان ہیں، وہ تو قابل معافی ہو بھی سکتے ہیں، مگر جو جانتا ہے اور پھر بھی اس کی زندگی معجزہ نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو مذہب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ مذہب کیا ہے، بس ان کا خیال ہے کہ انہیں پتہ ہے، اور یہی صورت زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے مگر پھر بھی وہ غلط جا رہے ہیں، مگر امکان یہی ہے کہ دوسری صورت نہیں ہوگی، بلکہ پہلی ہی صورتحال ہوگی کہ مذہبی لوگ مذہب کو جاننے کا بس دعویٰ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کس عظیم حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ سقراط ایک بہت ہی مزے کی بات کیا کرتا تھا کہ نوئنگ از کیریکٹر،
جو جان گیا وہ بدل گیا، اور جان کر بھی جو نہ بدلا تو جان لینا اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ تم نے جان لیا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اب تم آگ کو نہ چھوؤ گے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ غصہ جلاتا ہے، مگر پھر بھی غصہ کرتے ہو، تو تم نے جانا ہی نہیں، بس جاننے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کو وہ جانتے ہیں، مگر زندگی بدلتی نہیں ہے۔ غور کرو ان کے کہے پر، وہ یہ مان ہی بیٹھے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، اب زندگی بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے جاننے کا دعویٰ ہی بے بنیاد ہے۔ پھر سے غور کرو، کیا تم جانتے ہو؟ انقلاب، زندگی میں تبدیلی جاننے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جاننا جسم ہے، بدلنا اس کا سایہ۔ جسم ہوگا تو سایہ ہوگا ہی ہوگا۔ جانتے ہو اور زندگی نہیں بدلی تو جانو کہ نہیں جانتے ہو۔ جاننا ان اٹ سیلف پرفیکٹ ایکشن ہے، ایک کامل عمل۔ اس کے لیے کچھ اور کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر بدلنے کے لیے جاننے کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو جان لو کہ جاننے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یہ جو بدلنے کے لیے کچھ اور کرنے کا کشٹ ہے، یہ اور کچھ نہیں، یہ بس جاننے کی اس کمی کو پورا کرنے کی تمہاری ایک ناکام کوشش ہے۔ تم جاننے کی کمی کو ایکشن سے پورا کرنے میں لگے رہتے ہو۔ سمجھو، جاننا ان اٹ سیلف مکمل ایکشن ہے، کامل ترین فعل ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے زندگی میں انقلاب کے لیے تو پھر تم نے درست جانا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو جان لو کہ درست علم، رائٹ نالج، ایک ایسی آگ ہے جس میں تمہاری انا ایسے جل جاتی ہے جیسے وہ کوئی خشک کاغذ کا پرزہ ہو۔ تمہاری انا مگر بچتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جو آگ تم نے بھڑکائی ہے جاننے کی وہ اصلی نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ تم آگ آگ چلاتے ضرور ہو، مگر آگ لگی کہیں نہیں ہے۔ تم جاننا چیختے بہت ہو، مگر جانتے نہیں ہو۔ آگ بس تمہارے پاس ایک لفظ ہے، تمہاری زندگی کا کوئی سچ نہیں ہے۔ مذہب تم نے زندگی کی کتاب سے نہیں سیکھا، کسی سستے مولوی سے سیکھا ہے، اس مولوی سے جسے تم گھر کا بچا کھچا کھانا دے کر پالتے ہو۔ تم نے زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو بہت سستے داموں خریدنے کی کوشش کی ہے، اور یہیں تم بھٹک رہے ہو۔ گناہ بھی اتنا نہیں بھٹکاتا جتنا روایتی رواجی نیکیاں تمہیں بھٹکا دیتی ہیں۔ مذہب تو چراغ ہے، جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو تم بھٹکو گے کیسے؟ مگر تمہارے ہاتھ میں وہ چراغ ہے ہی نہیں، تم نے کوئی اور ہی اندھیرا اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے جسے تم نے چراغ نام دیا ہوا ہے۔ تم سمجھو کہ گناہ تمہیں پھر بھی نیکی کی راہ پر لے آ سکتا ہے، کیونکہ گناہ بھٹکاتا ہے تو لگتا ہے کہ تم بھٹکے، گناہ اذیت دیتا ہے تو لگتا ہے کہ تم اذیت میں پڑے۔ جب انسان بھٹکتا ہے، اذیت سہتا ہے، تو وہ سوچتا ضرور ہے کہ اس اذیت سے، اس بھٹکنے سے چھٹکارا کیسے پائے۔ لیکن جس نے گناہ کو ہی نیکی مان کر پکڑ رکھا ہو، اس کے دل میں تو یہ بھی خیال کبھی نہیں آتا، بلکہ اس سے الٹا ہوتا ہے کہ انا کو غذا مل جاتی ہے کہ میرے پاس چراغ ہے، اندھا چراغ ہے، انجلی موم بتی ہے، کوئی راہ اس سے تمہیں نہ ملے گی، تم بس بنا جاننے کا مزہ لے سکتے ہو۔ جاننا جو چراغ بنتا ہے وہ چراغ ہاتھ نہیں آتا۔ فقیر کہتا ہے جو خود کو جان لے وہی ہے جاننے والا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ دوسرے کو جاننے والا جاننے کا نقاب پہن سکتا ہے، جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، کبھی جاننے کی تڑپ جاگے تو سفر خود سے شروع کرنا۔ علم کی شاہراہ خود کے موڑ سے شروع ہوتی ہے، اور کسی بھی راہ سے علم کا سفر طے کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
زندگی کے سمندر میں جو ڈوبتا ہے وہ آج نہیں تو کل کنارہ ضرور پا لیتا ہے۔ ادھار کے علم سے جنہوں نے جاننے کا سراب پیدا کیا ہے وہ کبھی کنارے تک نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکیں گے۔ دوسرے کے ادھار علم کی بنیاد پر جاننے کا دعویٰ کرنے والے اس زمین پر کروڑوں اربوں ہیں۔ کتنے لوگ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا وہ سارے جانتے ہیں؟ نہیں، جاننے کا ڈھونگ کرنے والے ہیں یہ۔ کبھی غور سے دیکھنا ان لوگوں کو، ان لوگوں کا جاننا تو خود ان کے کام کبھی نہیں آیا، کسی اور کے کام کیا آئے گا؟ جو جاننا اپنے ہی کام نہ آ سکے اس جاننے کو جاننا کہنا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر بھی مذہبی ہوتا ہے، صوفی بھی مذہبی ہوتا ہے، لیکن وہ مذہب کو زندگی سے سیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے، اور یہ جاننا اس کا ماننا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ خود اس لیے موجود ہے کیونکہ خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قطرہ اس لیے موجود ہے کہ سمندر موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کرن اس لیے موجود ہے کہ سورج موجود ہے۔ اس کا جاننا خود میں ڈوب کر تخلیق ہوتا ہے۔ عام مذہبی مانتا ہے، وہ سب مانتا ہے جو اسے سکھایا گیا، جو اسے گھر نے سکھایا، جو اسے سماج نے سکھایا۔ وہ سیکھے کو مانتا ہے، مگر یاد رکھنا جو مانتا ہے وہ کبھی جانتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا زندگی کا تجربہ وہی بنتا ہے جو تم جان جاتے ہو۔ تم جان گئے کہ کانٹا چبھتا ہے درد دیتا ہے۔ تم جان گئے آگ جلاتی ہے تکلیف دیتی ہے۔ تم جانتے ہو بجلی کے ننگے تار کرنٹ دیتے ہیں، پین ہوتا ہے۔ تم آگ سے، کانٹے سے، بجلی کے ننگے تاروں سے بچتے ہو۔ تم مگر مانتے ہو کہ خدا ہے۔ تم مانتے ہو کہ مادی اور دماغی زندگی سے ماورا ایک زندگی ہے جسے جنت جہنم کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جھوٹ، غصہ، لالچ برا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں تمہاری زندگی کا تجربہ نہیں ہیں، کیونکہ تم نے بس انہیں مان لیا ہے۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو خدا تمہارے خود میں بولتا۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو غصے، لالچ اور جھوٹ سے بھی تم ایسے ہی بچتے جیسے تم آگ، کانٹے اور بجلی کے تاروں سے بچتے ہو۔ جو جانا نہیں جاتا وہ زندگی کا تجربہ کبھی نہیں بنتا۔ تم کہتے ہو دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھو اور بتاؤ، کیا یہ دنیا مٹی ہو گئی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ جن چیزوں کو تم مانتے ہو وہ اس لیے ہی مانتے ہو کہ انہیں جاننا نہ پڑے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنے فرقے کے عالموں، اپنے نقطۂ نظر کے حامی فلسفوں اور نظریوں کے مطابق خدا کا ایک تصور بناتے ہو اور اس کو ماننا شروع کر دیتے ہو۔ مان لینا بہت آسان ہے، جان لینا زندگی مانگتا ہے۔ جان لینا تمہاری پوری توجہ مانگتا ہے۔ مان لینے میں تمہارا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تم چند لیبل اٹھاتے ہو، چند نام چنتے ہو اور جاننے کا دعویٰ کر دیتے ہو۔ کسی بھی چیز کو جاننا ہو تو توجہ دینی پڑتی ہے، بہت ہی بھرپور توجہ۔ تم پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ تم کسی شخص کا نام، نسل، قومیت، وطن، پیشہ، رنگ، ذات پوچھتے ہو اور اعلان کر دیتے ہو کہ اس شخص کو جان لیا گیا۔ تم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو چند نام، چند لیبل تم نے کسی شخص پر لگا کر اس کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے، یہ نام یا لیبل اس لیے نہیں تھے کہ تم اسے جانتے، بلکہ یہ نام، یہ لیبل اصل میں اس لیے تھے تاکہ تمہیں اسے جاننا نہ پڑے۔ کسی شخص کا نام تمہیں معلوم نہ ہو، نسل، فرقہ، مذہب، قومیت معلوم نہ ہو، تو پھر تمہیں جاننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، کشٹ سہنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ باتیں کرنا پڑیں گی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا پورا تجربہ شیئر کرنا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کر تم اس شخص کے بارے میں تھوڑا بہت جان پاؤ گے۔
जो जो चीज़ें तुमने मान रखी हैं, कभी गौर करना इन चीज़ों पर। क्या तुम उन्हें जानते भी हो? जिंदगी को मानते हो, क्या जानते भी हो? अपने मजहब को मानते हो, क्या जानते भी हो? खुदा को मानते हो, क्या जानते भी हो? जानना बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है, मानना बस चंद लेबल्स, चंद नामों की जुगाली है और कुछ नहीं। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह था, जानने की धुन सवार हुई तो जंगलों गारों में निकल गया। अगर मानना पेशे नज़र होता तो सारी रियासत के उलमा सर के बल महल में हाजिरी लगाने पर तैयार थे। सिद्धार्थ बुधा रियासत की शाही छोड़कर जंगल जानने निकल गया। महावीर ने अपनी हुकूमत छोड़ दी। अगर जान लेना इतना ही आसान होता जितना तुमने समझ रखा है तो ये लोग दीवाने नहीं थे। सूफी जिंदगी की नदी में उतरता है और तब तैरना सीखता है। तुम लोगों ने ये समझ लिया है कि पहले तुम तैरना सीखोगे और फिर नदी में उतरोगे। कभी ना उतर सकोगे, क्योंकि तैरना तो वही सीखेगा जो नदी में उतरने का हौसला रखता हो। जिंदगी की नदी में उतरे बिना कभी जिंदगी को नहीं जाना जा सकता, ना जिंदगी के सबसे बड़े सच जाने जा सकते हैं। सोचो, कौन इस दुनिया में कामयाबी नहीं चाहता? सबकी चाहत कामयाबी है, मगर सबकी हकीकत पर गौर करो तो कहीं ना कहीं नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। फिनांस संभल जाते हैं तो रिश्ते बिखर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है तो सेहत के मसले रह जाते हैं। कोई शाज़ ही ऐसा बंदा मिलता है कि जो खुद को कुल्ली तौर पर कामयाब कह सके। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि तुम सभी कामयाब होना चाहते हो, मगर सभी नाकाम हो रहे हो। एक हादसा है जो तुम लोग मुसलसल झेल रहे हो, एक सानिया है जिससे रोज़ गुजरते हो, एक आग का दरिया है जिसे रोज़ पार करने की कोशिश करते हो और रोज़ ही नाकाम होकर सोते हो, मगर याजूज माजूज की तरह फिर अगले दिन उठकर उसी दीवार को चाटना शुरू कर देते हो जो खुद को साबित कर चुकी है कि उसे चाटा नहीं जा सकता। तुम्हें इस बात पर कभी हैरानी क्यों नहीं होती कि कोई भी ऐसा नहीं जो सुख ना चाहता हो और कोई भी ऐसा नहीं कि जो दुखी ना हो? ये तुम्हारी जिंदगी की रोजमर्रा की हकीकत है, मगर तुम फिर भी ये सोचने पर तैयार नहीं हो कि ऐसा क्यों। ये सवाल उठाने पर तैयार नहीं हो कि कहीं हम चाह ही तो गलत नहीं रहे। सभी जीना चाहते हैं, सभी मर जाते हैं। एक शख्स नाकाम होता, एक शख्स दुखी होता, एक शख्स मरता तो कह भी देते कि वही शख्स होगा उसका जिम्मेदार। लेकिन कामयाबी, खुशी, जिंदगी का ख्वाहिशमंद अगर हर शख्स नाकाम है, सुख का मुतमन्नी अगर हर शख्स दुखी है, जीने को बेचैन अगर हर फर्द आखिर में मर रहा है, तो फिर बात किसी एक शख्स के किसी एक अमल की नहीं, जिंदगी को देखने के नजरिए में ही कोई बुनियादी फॉल्ट है। कोई बड़ा बुनियाद का पत्थर है जिस तक तुम पहुंच नहीं पा रहे। कोई एक होता जो सुख चाहता और दुख पाता तो ये कहकर मुतमईन हुआ जा सकता था कि उस शख्स में ही कोई खराबी होगी। लेकिन अगर सभी सुख चाहने वाले दुख में हैं तो किसी एक को इल्ज़ाम कैसे दें? समझो, खिलाड़ियों में खराबी नहीं है। तुम जिंदगी के नाम पर खेल ही वो खेल रहे हो जिसमें आखिर में सबको हारना ही होता है। क्या जिंदगी की बुनियादी फितरत में कोई मसला है? नहीं। क्या तमाम इंसानों में कोई बुनियादी मसला है? नहीं। न जिंदगी के साथ कोई मसला है, न इंसानों में कोई फितरी खराबी है। जिंदगी की भूल नहीं है, भूल तुम्हारी ही है, मगर क्योंकि सब ही एक भूल कर रहे हैं तो भूल भूल लग नहीं रही। क्योंकि असूल कहता है वो भूल जो सब कर रहे हों
वो भूल नहीं रह जाती, वो समाज का आम रवैया बन जाती है। किसी बीमारी में ज़ारे अगर मुब्तला हूँ तो बीमारी बीमारी नहीं रहती, बल्कि नॉर्मल हेल्थ कंडीशन बन जाती है। फ़कीर कहता है, जो भी शख्स जीतने की कोशिश करेगा वो ज़रूर हारेगा। इसलिए नहीं कि इंसान की हार फितरत का कोई रूल है, और ना इंसान इसलिए हारता है कि वो कमज़ोर है, बल्कि असल बात यह है कि इंसान इसलिए हारता है क्योंकि वो जीतने की कोशिश करता है। जीत की कोशिश तुम्हारी हार की बुनियादी तरीन वजह है, क्योंकि जीता हुआ अगर जीतने की कोशिश कर रहा होगा तो अब वो कहाँ जाएगा? लाजमी बात है हार की तरफ। तुम हो और तुम्हारा होना ही तुम्हारी जीत है, बीइंग ही तुम्हारी कामयाबी है। तुम एक बेजान जर्रा भी हो सकते हो, मगर नेचर ने तुम्हें शऊर की एनर्जी देकर तुम्हें पहले ही विनर डिक्लेयर कर रखा है। अगर पहले से ही जीता हुआ जीतने की कोशिश करेगा तो वो किधर जाएगा? उधर ही जिधर तुम अब सब जा रहे हो, हार की तरफ। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम सोचते हो इसलिए हारे क्योंकि कमज़ोर थे, और ताकत बढ़ गई तो फिर जीत जाएंगे। सारी खल्क़े खुदा ये जो रोज़ सुबह उठकर मसरूफ़ हो जाती है, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सिर्फ जीने की कोशिश में है? ये बका के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये सारे ज़्यादा दौलत, ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा बड़ा ओहदा, ज़्यादा तरक्की, यानी ऑल इन वन, ज़्यादा ताकत के जस्तजू में काम में जुटे हैं, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि ज़्यादा ताकत इनकी कमज़ोरी को, इनकी शिकस्त को, इनकी हार को ख़त्म कर देगी, और ये कमज़ोर नहीं रहेंगे तो हारेंगे नहीं। मगर तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इसलिए हारे थे क्योंकि तुम कमज़ोर थे। यही ख्याल तो इस यकीन को पैदा करता है कि ताकत बढ़ाओ, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा जिस्मानी ताकत, ज़्यादा शोहरत। लेकिन अमलन तुम देख सकते हो जितनी भी ताकत हाथ आ जाए, आखिर में मुकद्दर हार ही होती है। तारीख़ इंसानी को उठाकर तो देखो, कोई कोई इंसान ही जीता और जिंदा मरता नजर आता है, वरना सिकंदर हो या नेपोलियन, सब शिकस्त खुर्दा मरते हैं। कमज़ोर हों के ताकतवर सब मरते हुए कह रहे होते हैं, हाय हार गए। तुमने जिंदगी को जंग माना था तो हारते हुए ही मरना था। इससे एक बात तय हो गई, ताकत बढ़ जाने से जीत का कोई ताल्लुक नहीं। फकीर कहता है कि हार की वजह खुद जीतने की ख्वाहिश में छुपी है, ताकत की कमी में नहीं। कामयाबी की ख्वाहिश को छोड़ दो, तुम कामयाब हो ही। ख्वाहिश में बीज हैं तुम्हारी हार के, तुम्हारी नाकामी के। जो जीतना चाहता है उसके माइंड सेट को पहले समझो। उसने चंद बातें पहले से मान ली हैं। नंबर 1, इस वक्त मैं हारा हुआ हूं, जो मैं हूं इससे कुछ और हूंगा तो मैं जीतूंगा। दूसरी बात जो वो मान कर चल रहा है वो ये है कि जिंदगी एक ऐसी जद्दोजहद का नाम है जिसमें हारा भी जा सकता है। वो जिंदगी के होने का इनकारी है, बल्कि कुछ करके जिंदगी को बेहतर बनाने का बिलीवर है। तीसरी बात, उसने ये भी मान ली है कि जीत बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मेहनत से जिंदगी की बाजी को जीता जा सकता है। चौथी चीज, उसने ये मान ली है कि उसकी कामयाबी दूसरों पर मुनहसर है। जो कामयाबी अब दूसरों पर मुनहसर होगी वो तुम्हें कैसे मिलेगी? फर्ज करो कोई इंसान है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने को कामयाबी समझता है। कोई शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होना चाहता है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता है, तब वो समझेगा खुद को कामयाब। इन सब लोगों को गौर से देखो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए आखिर किसी को कितनी दौलत दरकार है? जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, क्या वो रुक गया है? जो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, क्या उसे यकीन हो गया है कि अब वो कामयाब है?
इस रेस की नोयत को समझो। फर्ज करो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स है, आप भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने निकले हैं। बिल गेट्स भी इसी रेस में दौड़ रहा है। तो जब तक तुम्हारे पास बिल गेट्स जितनी दौलत जमा होगी, क्या बिल गेट्स वहीं रुका रहेगा? जी नहीं। फिर आखिर कब तक दौड़ोगे? क्या इस दौड़ में नाकामी ही आखिरी मंजिल होगी कि नहीं? असल में तुमने कामयाबी को मुकाबले से जोड़ रखा है, और मुकाबला एक ऐसी रैट रेस है, एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें जीतने वाले भी हार जाते हैं और हारने वाले तो खैर हार ही जाते हैं। मुकाबला असल में नफ्सियाती हालत है, और नफ्सियाती हालत की तशफ़ी, नफ्सियाती तब्दीली तो कर सकती है, कोई बाहरी चीज़ें नहीं। फ़र्ज़ करो एक भिखारियों की बस्ती है, सारे भिखारी हैं, मांग तांग कर शाम की रोटी पूरी करते हैं और सो जाते हैं। ये सालों से उनका तर्ज ज़िंदगी है। अब इनमें से चंद भिखारी शहर जाकर भीख मांगने लगे। कुछ अरसे में उनके पास 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा माल जमा हो गया। वो वापस उसी बस्ती में आए। उन्होंने कुटिया की बजाय मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। तुम बताओ कि बाकी बस्ती भी अब क्या वही रवैया रखेगी ज़िंदगी की तरफ जो इन लोगों के वापस बस्ती में आने से पहले था? नहीं, अब सब के लिए ही अपना मकान मंजिल ठहरेगा। क्या हुआ? कल तक जो नागुज़ीर ज़रूरत नहीं थी, आज वो पूरी बस्ती की नागुज़ीर ज़रूरत कैसे हो गई? मुकाबला, कामयाबी का दूसरों पर इन्हिसार। इसी मिसाल को सब पर लागू करते जाओ, लोगों से मुल्कों तक। क्या ये तुम लोगों की दौड़ नहीं है? जब वो बस्ती 2 वक्त की रोटी को मंजिल समझती थी तो कामयाबी आसान थी, मगर अब वो समझने लगे हैं कि कामयाबी कठिन है। कल तक किसी बस्ती वाले के दिमाग में ये सवाल नहीं था कि हारा भी जा सकता है। अब सभी सोच रहे हैं कि जीते जी अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं। कल तक इस बस्ती के किसी बासी के दिल में ये ख्याल नहीं था कि वो हारे हुए हैं। अब हर शख्स ही कह रहा है कि वो हारा हुआ है और उसकी जीत मुस्तकबिल में है, जब वो मकान बना लेगा। तो ये 4 पॉइंट जहन में बिठा लो। जो जीतना चाहता है, जो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, उसमें ये 4 बातें ज़रूर होंगी। 1, वो समझता है कि वो इस वक्त हारा हुआ है। 2, वो समझता है कि हार का इम्कान है। 3, वो समझता है कि जीत कठिन काम है। 4, उसकी कामयाबी किसी दूसरे पर मुनहसर है। जीत की नफ्सियात को समझो, ये कभी खुद इंसान पर मुनहसर नहीं होती। कोई हारेगा तो ही तुम जीतोगे। तो ये बात भी तय हो गई कि जीत में दूसरे की गुलामी छुपी है। सभी जीतने वालों को हारने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वो जीत कैसे सकते थे। मुझे तुम बताओ कि जो चीज़ दूसरे पर मुनहसर हो, क्या उसे वाकई जीत कह सकते हैं? अगर मेरी जीत भी तुम पर मुनहसर है तो तुम मेरी जीत के भी मालिक हो, यानी मेरी चाबी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। क्योंकि तुम हारोगे तो ही तो मैं जीतूंगा, इंडिया हारेगा तो ही तो पाकिस्तान जीतेगा, रूस हारेगा तो ही तो अमेरिका फातेह कहलाएगा। फर्द हो के कबीला, कौम हो के मुल्क, सबकी कामयाबियां किसी की नाकामी से जुड़ चुकी हैं। इसलिए जीत और कामयाबी तुम लोगों का मुकद्दर हो ही नहीं सकती। तुम लोग तो वही जीत सकते हो जो तुम पर मुनहसर हो। और बिलफर्ज कोई शख्स सबको हरा ले, कोई मुल्क सबको पीछे छोड़ दे, कोई शख्स बिल गेट्स से ज़्यादा दौलतमंद हो जाए, कोई मुल्क अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या ख्याल है इसके बाद वो बैठ जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई शख्स या मुल्क पूरी दुनिया को भी हरा देगा तो दूसरे सियारों को हराने के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि जीत और कामयाबी खुद मुनहसर नहीं है, वो कायनात को हराने की कोशिश करेगा। अब ये कायनात बहुत बड़ी है, कम से कम किसी शख्स या मुल्क के मुकाबले में तो बहुत ही बड़ी है। इंसान और मुल्कों से कहीं ज़्यादा ताकतवर। आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कायनात से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। कितने भी हाथ पैर मार लें, कायनात की ताकत से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। क्योंकि ये कायनात अगर सहरा है
तो तुम समेत पूरी दुनिया इसमें फकत रेत का एक जर्रा भी नहीं। तुम गौर से देखो, वो शख्स जो हमसाए को हराने की कोशिश में मगन है, जिसकी कामयाबी बस इसी में है कि वो हमसाए से ज्यादा खुशहाल हो जाए, अगर वो ये कर ले तो क्या बैठ रहेगा? नहीं, महल्ले को हराएगा और कायनात को हराने तक उसकी ये कोशिश का सफर जारी रहेगा। किसी मुल्क की मिसाल ले लो, भारत या पाकिस्तान एक दूसरे को हरा दें तो क्या बैठ रहेंगे? नहीं, बल्कि एशिया को, फिर दुनिया को, फिर स्टार वार्स, फिर कायनात। मतलब किसी को हराने का हर सफर असल में कायनात को हराने का सफर है, और कायनात को हराना अगर तुम्हारी मंजिल है तो तुम्हारी हार यकीनी है। अगली बात, अगर तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश है तो ये बात भी तय हो गई कि तुम इस वक्त हारे हुए हो। असल में हारा हुआ होना इन इट सेल्फ एक नफ्सियाती मर्ज है। फतह और कामयाबी के जुनून के सारे मुब्तला नफ्सियाती मरीज हैं। मुझे पता है कि तुम इस फकीर की बात को नहीं मानोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इस जदीद दुनिया के सियाने लोगों की बात सुनाता हूँ। बड़े माहिरीन नफ्सियात हैं जो कहते हैं जीतने को बेताब लोगों की अक्सरियत एहसास कमतरी का शिकार होती है। वो अपनी जीत और कामयाबी से उसी एहसास कमतरी को एहसास बरतरी में ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एहसास बरतरी भी खुद अपनी ज़ात में एहसास कमतरी ही की एक शक्ल है। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर किसी शख्स में एहसास कमतरी है तो क्या वो वाकई ताकतवर है या कमज़ोर है? कमज़ोर की सबसे बड़ी निशानी एहसास कमतरी ही होती है। तो जो जीतने को बेचैन है, जो दौलत, ताकत और शोहरत के पीछे दीवाना है, उसमें कमज़ोरी की कोख से फूटता एहसास कमतरी ज़रूर होगा। एहसास कमतरी का मतलब है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर आदमी ताकत ढूंढेगा ही, गरीब आदमी दौलत ढूंढेगा ही, वैसे ही जैसे बीमार आदमी दवा ढूंढता है। नफ्सियात में सिगमंड फ्राइड के बाद सबसे मारूफ शख्सियत हैं अल्फ्रेड एडलर। एडलर ने एहसास कमतरी और दुनिया के ताकतवर और दौलतमंद लोगों की नफ्सियात के हवाले से बड़ा अहम काम किया है। एडलर कहता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में किसी किस्म की कमी, कमज़ोरी, नाकामी का एहसास ज़्यादा होता है, वो इस एहसास से निजात की कोई दूसरी राह खोज निकालते हैं। एडलर ने दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग, जिन्हें हम कामयाब कहते और समझते हैं, उनमें वो कमी ढूंढने की कोशिश की है जिस कमी की वजह से वो जीतने की दौड़ में दौड़े। ये इंसानी नफ्सियात की मजबूरी है। देखते नहीं हो कि अंधे की सुनने या सूंघने की हिस्स कितनी तेज हो जाती है? वो ऐसा करेगा ही क्योंकि उसने आंख का काम भी कान या नाक ही से लेना है। कभी तुम लोगों ने गौर किया कि ज़ाहिरी तौर पर बदसूरत आदमियों ने हुस्न की कैसी कैसी मूर्तियां बनाई हैं? हुस्न को अपने फ़न का मौजू बनाने वालों की फहरिस्त उठाकर कभी देखना, अक्सरियत खुद ज़ाहिरी हुस्न से आरी नज़र आएगी। एडलर कहता है कि दुनिया में जो अच्छे और हकीकी इंसान हैं वो किसी बड़े ओहदे मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते, बल्कि बीमार, कमज़ोर, एहसास कमतरी का शिकार लोग ही इन ओहदों पर पहुंचते हैं। एडलर की बात कुछ इतनी भी कमज़ोर नहीं है। बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत की ख्वाहिश खुद में मौजूद किसी बड़ी कमी, किसी बड़ी कोताही, किसी बड़े रोग की तलाफी के लिए होती है। इसलिए ये बात जान लो कि जिस इंसान के दिल में जीतने की ख्वाहिश शदीद हो, वो अंदर से ये बात जानता है कि असल में वो हारा हुआ आदमी है। ये बात बेशक तुम्हें थोड़ी सी उल्टी लगेगी, मगर गौर करो तो एडलर वही कह रहा है जो हजारों सालों से सूफी फकीर कहते आए हैं। अगर जीतना चाहते हो तो जीतने की कोशिश या ख्वाहिश मत करना, क्योंकि जीत की कोशिश और ख्वाहिश हार की शुरुआत है। जीतना चाहते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन खुद जीत की ये तमन्ना है, क्योंकि ये ख्वाहिश बता रही है तुम जीत के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारी रूह में कोई खाई है, कोई घाव है जो नहीं भर सकता। तुम अपने होने के लिए किसी चीज़ के मोहताज हो, तुम अपने आप में कामिल नहीं हो। इसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करो।
साइंसी और समाजी उलूम के माहिरीन डार्विन की तशरीह कुछ इस तरह करते हैं कि सर्वाइवल की जंग में इंसान इसलिए आगे निकल गया क्योंकि वो ज़हीन था, ज़्यादा रैशनल था, माकूल था, इसलिए बका की जंग में वो बाकी सारे जानवरों को हराने में कामयाब हो गया। डार्विन की इस तशरीह को अब तक कबूल आम की सनद हासिल रही है, मगर अब कुछ आवाज़ें इसके खिलाफ भी उठ रही हैं जो कह रही है कि इंसान सर्वाइवल की इस दौड़ में आगे निकला है तो इसकी वजह ये नहीं कि वो ज़्यादा ताकतवर, ज़हीन या कामयाब मखलूक था, बल्कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे कमज़ोर स्पीशी इंसान था। इंसान का बच्चा सबसे कमज़ोर हालत में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा हेल्पलेस। अगर इंसान के बच्चे को वालिदैन पाले ना, माशरा उनकी फ़िक्र ना करे तो इंसान बच ही ना पाए। सभी जानवरों के बच्चे आदमियों के बच्चों से ज़्यादा ताकतवर और ख़ुद कफ़ील पैदा होते हैं। साइंसदान कहते हैं कि अगर इंसान का बच्चा बाकी जानवरों की तरह ख़ुद कफ़ील और ताकतवर पैदा करना हो तो माँ की कोख में उसे कम से कम 21 माह रहना चाहिए, लेकिन इस सूरत में वो पैदा ही ना हो सकेगा क्योंकि माँ नहीं बच पाएगी। गौर करो ना, घोड़े का बच्चा पैदा होता है और थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाता है। आदमी के बच्चे को सालों लग जाते हैं ठीक से चलने में। जानवरों के बच्चे चंद दिनों में खुद कफालत की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। आदमी का बच्चा कहीं 25 साल बाद जाकर सेल्फ सस्टेन्ड लाइफ गुजारने के काबिल बनता है। तो बात यह है कि इंसान का बच्चा कायनात में सबसे कमज़ोर पैदा होने वाली मखलूक है, और चूँकि आदमी पैदाइशी कमज़ोर है इसलिए तलाफ़ी की ज़्यादा कोशिश भी करता है, बल्कि अक्सर तो ओवर कंपनसेट कर डालता है। इसी ओवर कंपनसेशन में इंसान ने सब जानवरों को पछाड़ दिया है। देखो ना, इंसान के नाखून हो या दांत सारे जानवरों से कमज़ोर हैं। अगर जानवरों इंसानों की दो बदू लड़ाई हो तो आदमी से ज़्यादा कमज़ोर जानवर इस कायनात में ढूंढे से ना मिलेगा। जानवर के नाखून, उसके दांत लम्हों में इंसान को चीर फाड़ के रख दें। साइंसदान कहते हैं कि नाखूनों और दांतों की कमज़ोरी का एहसास से कमतरी इंसान में इतना शदीद था कि पत्थर के औजारों, छुरी तलवारों से होता हुआ ये एटम बम, हाइड्रोजन बम तक चला गया। इंसान एहसास से कमतरी में डूबा अपने नाखूनों को बढ़ाता ही चला गया, अपने दांतों को बढ़ाता ही चला गया। तुमने मैदान जंग में टैंकों को, तैयारों को आग उगलते देखा है? ये इंसान के दांत हैं, ये इंसान के नाखून हैं जो उसने बाकी जानवरों से मुकाबले की धुन में बढ़ाए। इंसान ने मसनूई दांत और नाखून बढ़ाकर जानवरों को मट्टी में मिला दिया, और अब ये दांत और नाखून इतने बढ़ गए हैं और मुंह जोर हो गए हैं कि खुद इंसानों को निगलने को तैयार हैं। डार्विन की इस दूसरी तशरीह के मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसे हम इंसान की कामयाबी कहते हैं वो असल में इसके एहसास से कम तरीका फल है। एडलर और डार्विन की ये तशरीहात दुरुस्त हैं या गलत, मुझे इस बहस से कोई लेना देना नहीं, ना ये मेरा मौजू है। मगर एक बात कन्फर्म है कि इंसान में ऊपर उठने की ख्वाहिश इस बात की गवाह है कि वो अब नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि जो नीचे गिरा हुआ ही ना हो उसमें ऊपर उठने की ख्वाहिश काहे को पैदा होगी। जो खुद में कामिल हो वो किसी तकमील की ख्वाहिश में दीवाना होकर क्यों घूमे। जिसको खुद पर भरोसा हो वो भरोसा पाने के लिए दूसरों को हराने की स्कीमें क्यों बनाए। तुम लोग कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इसी चक्कर में हो कि बता सको कि तुम हो, मगर गौर करो तो जान लोगे कि जो कुछ होने की धुन में है वो अंदर से ये जान रहा है कि वो इस वक्त कुछ नहीं है। ये कुछ ना होने का जो यकीन है यही इंसानों का सबसे बड़ा दर्द है। कायनात में अपने होने का यकीन सबूत तक पहुंचाने के लिए इंसान ये सारी काविश कर रहा है, मगर यकीन मानो इंसान कुछ भी कर ले, कुछ ना होने का जो अंदर का बशरी बोझ है वो दब सकता है, फना नहीं हो सकता। और कितना भी इंसान ताकतवर हो जाए उसके अंदर ये डर,
कायम रहेगा कि कोई और ताकतवर होगा जो उसे तबाह कर देगा। गरीब मुल्कों के बासी आंधी तूफान गुर्बत से डर रहे हैं। अमीर मुल्कों के लोग किसी दूसरे सैयारे से आने वाले एलियंस के हमलों से सहमे हुए हैं। आजकल के हालात को देखो जरा, एक मामूली सा कोरोना वायरस कैसे इंसान के सुप्रीम होने का मुंह चिढ़ा रहा है। सभी सहमे हुए हैं क्योंकि एक डर है जो इंसान में बैठ गया है। यही डर है जो तुम्हें जीत और कामयाबी के लिए पागल बना रहा है। देखो जरा अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द को। डर में लिथड़ी मखलूक गलियों सड़कों पर चलती नजर आएगी तुम्हें। कच्चे घर पक्के कर लिए तो तूफानों का डर, पक्के घर कंक्रीट के हो गए तो जल्जलों का डर। ये डर नहीं जाएगा। मुल्क अमेरिका भी हो जाए, दुनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने जितना असला भी जमा करके बैठा हो तो भी असले की दौड़ से रुक नहीं सकता। उसे अपनी ताकत बढ़ाते ही रहना होगी। एहसास से कम तरीक की नफ्सियाती हालत में बाहर से कुछ भी ऐड हो जाए, कुछ भी तशफ़ी नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान के पास बंदूकें तक पूरी नहीं थी तो भी बैरूनी खतरा था। अब एटम बम है तो भी बैरूनी खतरा है। बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये एक विशियस सर्कल है। इस सर्कल में रहते हुए तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। हाँ, ये बात समझ आ सकती है अगर जीत और हार से पहले उसे जान लो कि जो जीतता है, जो हारता है। अगर उसे जान लो तो फिर जीत हार की फिक्र नहीं होगी, बल्कि खुद अपनी फिक्र करो।